Okay, so in this video, we'll basically understand the physical properties of the haloalkanes and the haloarenes. Now you see, the first line is written, alkyl halides are colorless when pure. Remember, alkyl chlorides and alkyl fluorides are basically colorless when they are pure. But however, when it comes to bromides and iodides, they develop color when exposed to light. Why you know? Because when we are talking about bromides and iodides, they are much more bigger atoms, right? So they will form much more bigger bonds, and hence the bond strength will be very less, and the bond dissociation energy will also be less. And due to less bond dissociation energy of bromides and iodides, they dissociate from the alkane, and that's why they develop color because of independent I2 and Br2 released, which are actually colored, as you know. So that is one fact. Now other thing is that you should remember, many volatile halogen compounds have sweet smell. Of course, methyl chloride, CH3Br, CH2H5Cl, all these alkyl halides or halogen compounds are sweet smelling, and they are gaseous in nature. And who are volatile halogen compounds? Halogen compounds which have low boiling point, okay, they will be volatile, isn't it? Because if something has a high boiling point, and if it is in liquid nature, suppose if it is in liquid nature and it has high boiling point, then it will not convert into vapor so easily. But in case of low boiling point and even lower boiling point than that of room temperature, will make it release its vapor without even heating, yes or no? So that is why they are volatile in nature. Now as you can see, I have written down here that RF is less than RCl is less than RI. This is the trend of boiling point. That means RI or CH3CH2I or CH3I, or suppose just imagine that all the R are same. All the R are CH3CH2. So one is CH3CH2F, one is CH3CH2Cl, one is CH3CH2Br, one is CH2CH2I. Now in CH3CH2I there will be highest boiling point. That means the intermolecular force of attraction there is more. And in case of CH3Br, it is lesser, and it is lesser in case of RF. So here you should remember that shifting from fluorine to chlorine to bromine to iodine, the London forces increases. I think you don't remember what London forces are, but I will discuss this. That the London forces is a type of van der Waals force that increases, and due to the increase in the London forces between the molecules of these alkyl halides, they are stick together more firmly, and hence the boiling point is highest in case of alkyl iodide. So it is the presence of iodine which makes the London forces to be more stronger. So when fluorine to chlorine to bromine to iodine is shift, the value of London forces increases between the molecules, and hence there is more intermolecular force of attraction. Now one question may arise, that why in cases of iodine or bromine or chlorine or fluorine, why is it the iodine that imparts highest London force between the molecules of the alkyl halides, and not Br and not Cl or not F? The reason is because more bigger will be the atom, more bigger will be the size of the atom, more dispersed electron cloud will be there, a larger number of electron cloud will be there. Because why? Because if you see the electronic configuration, iodine has a higher atomic number and has higher number of electrons, and I can hence say that the electron cloud is also very big. And as because the electron cloud is big, the distortion will also be lead to more charge separation, and hence what will happen, the dispersion forces or the London forces are also known as dispersion forces, will increase. I'll show you one picture so that you can understand. See, you can see a picture here. This is how London forces are developed. What happens, it was found out by a scientist called London. It is also known as dispersion forces, because suppose if this is the nucleus and this is the electron cloud around it, the electron cloud gets distorted a little bit, okay? And hence you can think, I hope, that more bigger the size of this atom, more distortion will be there, larger distortion will be there, and hence the charge separation of the molecule will be, or the atom will be more.
Suppose if this atom is linked to a molecule, in that molecule also charge separation will be more, and hence there will be more force of attraction in case of large bigger molecule present in a compound, because the dispersion forces will be more because of the more dispersion of the electron cloud of the bigger atom. So that is the reason why. Ri has highest amount of dispersion forces, or temporary van der Waals force, or just to say London forces, and hence it has greater forces of attraction between the molecules, and hence what will happen? There will be this will have a larger boiling point. Okay, so I think I could explain it. So larger the boiling point, it will be remaining in liquid state or maybe not so volatile. Lower the boiling point, it will be much more volatile. So the order of volatility will just be opposite. This will be the highest volatile because of the lowest boiling point. I hope that you understand it. So while talking about volatility, I have talked a lot about boiling point also, but here however let's understand the melting and boiling points. I hope that you have an idea in your mind that melting point high means boiling point also high, because melting मतलब लिक्विड सॉलिड से लिक्विड में जाना, तो सॉलिड में हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसी कंपाउंड का लिक्विड में भी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और बॉइलिंग मतलब लिक्विड से गैस में जाना। तो अगर सॉलिड से लिक्विड में जाने में ज़्यादा टेम्परेचर लग रहा है तो उसी कंपाउंड का लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में जाने में भी ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई ही होगा। ओके, क्योंकि उस कंपाउंड का नेचर ही वैसा है। तो आई होप दैट इज़ अंडरस्टूड बाय यू। Methyl chloride, methyl bromide, ethyl chloride and some chlorofluoromethanes are gases. Why? Because all these have comparatively less intermolecular force. किसी में भी आयोडीन नहीं देख रहे हो, तो अगर आयोडीन नहीं देख रहे हो तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस ही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वैन डर वाल्स डिस्पर्शन या लंडन फोर्स ऑफ डिस्पर्शन उतना ज़्यादा नहीं होगा, जो कि इस चीज़ को गवर्न करता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ आयोडीन नहीं है। जितना भी प्रेजेंस ऑफ आयोडीन देखोगे उतना वो लिक्विड में होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो CH3X, CH3CH2X, CH3CH2, CH2X, वो तो छोड़ो। एक्स अगर ऑरेंज है तो क्लोराइड, ब्लू है तो ब्रोमाइड, और येलो है तो आयोडाइड। तो येलो में देखो सब लिक्विड में है, लेकिन ऑरेंज और ये में सब गैस में है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये होता है। जितना आयोडाइड होगा सब लिक्विड में होगा। क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ हायर वैन डर वाल्स और लंडन फोर्सेस एज डिपिक्टेड हियर। ओके, in between the molecules of the alkyl iodides. In comparison to that, bromide has much less, remain in gaseous, and chloride is also much more less and remain in gaseous. But however, you see, if there is chloride, its boiling point is much more lower than if it is bromide, being a gas in each of the cases. Okay, in 3 of the cases, CH3X, CH3Br, CH3CH2Br, CH3CH2, CH2Br, ये तीनों हैं, और क्लोराइड ये तीनों हैं। तो इसका मतलब ज़्यादा होता है। अब बात ये है कि सर 3 करके से कन्फ्यूज़ क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखो CH3 और यह है CH3CH2 का, और यह मतलब यहाँ पे दिखा रहा है कि क्लोराइड का, ब्रोमाइड का, आयोडाइड का, और क्लोराइड का, ब्रोमाइड का और आयोडाइड का, और क्लोराइड का, ब्रोमाइड का, आयोडाइड का कंपैरेटिवली नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज़ हुआ है, तो उसका भी थोड़ा इफेक्ट होता है। जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज़ होगा और जितना कार्बन चेन बढ़ेगा, होमोलोगस में हायर रैंक में जाएगा, उतना क्या होता जाएगा, उतना वैन डर वाल्स फोर्सेस और बढ़ता जाएगा, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हाई हो जाएगा। तो इसीलिए देखो कंपैरिजन, CH3X मतलब इसको अगर CH3 क्लोरीन CH3Cl पकड़ूँ, इसको भी CH3Cl पकड़ूँ, इसको भी CH3Cl पकड़ूँ, तो यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। इसका रीज़न ये है कि इसमें ज़्यादा लंबा कार्बन चेन है, जिसको वैन डर वाल्स फोर्स को और बढ़ाया है। हालांकि उसमें क्लोरीन है। तो उसी तरह ब्रोमीन का भी कंपैरिजन है, और आयोडीन का भी है। लेकिन अगर इन तीनों में कंपैरिजन करो, किसी एक को भी उठा लो, इसको उठा लो, तो क्लोरीन और ब्रोमाइड लिक्विड गैसियस स्टेट में रहता है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी कम है, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन का साइज़ ऑफ द एटम उतना बड़ा नहीं है, तो वो डिस्पर्शन ज़्यादा नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप आयोडीन को देखोगे तो आयोडीन ज़्यादा बड़ा डिस्पर्शन करेगा। तो इसका मतलब क्योंकि उसका एटम का साइज़ भी ज़्यादा होगा, तो इसके वजह से क्या होगा कि उसका लंडन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा होगा। तो इसीलिए इन तीनों के तुलना में ये है, इसका ज़्यादा है। तो अब I hope that effect of the number of carbon chains and also effect of the presence of chlorine, bromine and iodine you have understood. Okay, so that is the thing.
दैट इज़ व्हाट इज़ रिटेन ऑल ओवर हेयर. आई थिंक आई कुड एक्सप्लेन इट. अच्छा, सबसे पहले तो ये लोग गैसियस स्टेट में इसलिए रहता है क्योंकि एक पहला बात तो ये है, उसमें सब देखो मिथाइल, मिथाइल, इथाइल और मीथेन, मतलब एक या दो कार्बन वाला कंपाउंड ही है. तो इसका मतलब उतना अगर कम कार्बन वाला कंपाउंड है तो लोअर बॉइलिंग पॉइंट में रहता है. तो इसका मतलब है कि वो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा नहीं होगा, तो वो गैसियस स्टेट में रहेगा. ओके, तो ये तो एक पहला बात है. और दूसरा बात ये है कि क्या बोल रहा था मैं, दूसरा बात ये है कि किसी में भी आयोडीन नहीं है, तो इसका मतलब उतना ज़्यादा डिस्पर्शन फोर्सेस भी नहीं होगा और वैन डर वाल फोर्सेस भी कम ही है. तो इसका मतलब ये लोग गैसियस स्टेट में रहता है. आई होप दैट यहाँ पे जो लिखा हुआ है, देखो वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है. और हायर मेंबर्स ऑफ लिक्विड्स आर सॉलिड्स, देखा बोला है हायर मेंबर्स आर लिक्विड्स और सॉलिड्स, और आयोडीन वाला तो होगा ही लिक्विड्स और सॉलिड्स. अच्छा, ड्यू टू ग्रेटर पोलरिटी एज वेल एज हायर मॉलिकुलर मास एज कम्पेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन. ठीक ही है, पोलरिटी ज़्यादा होगा क्योंकि अगर C और X बॉन्डेड है तो X हल्का सा ये होता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन नेचर. तो ये क्या होगा, X हल्का सा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के डेल्टा नेगेटिव बना देगा और C डेल्टा पॉजिटिव रहेगा. तो थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन नेचर में. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डाइपोल एंड वैन डर वाल्स आर स्ट्रॉन्गर इन हैलोजन. अच्छा सॉरी, ड्यू टू ग्रेटर पोलरिटी एज वेल एज हायर मॉलिकुलर मास एज कम्पेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन. पेरेंट हाइड्रोकार्बन से उसका ज़्यादा ही होगा क्योंकि पेरेंट हाइड्रोकार्बन में तो हाइड्रोजन था. हाइड्रोजन के हटा के अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन घुसेगा, CH4 में से एक भी हाइड्रोजन को हटा देगा तो मॉलिकुलर मास तो बढ़ ही जाएगा ना, क्योंकि इन लोगों का एटॉमिक मास ज़्यादा है. तो हायर एटॉमिक मास या हायर मॉलिकुलर मास हो गया और ग्रेटर पोलरिटी हो गया. द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर मोर देन द एल्केन्स. तो यानी अगर CH3I है और CH3Br CH4 है या CH3Cl है, कुछ भी है, तो CH4 का या कोई भी एल्केन का लेस मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका हैलोजन डेरिवेटिव से. ये तो सही बात है क्योंकि इसका मॉलिकुलर मास बढ़ जाता है और डाइपोल इंटरेक्शन भी होता है, तो उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी हो जाता है क्योंकि पोलरिटी है. तो दूसरा एटम में भी पोलरिटी रहेगा तो इसमें अट्रैक्शन होगा, है ना. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा. तो ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ती है. बॉइलिंग पॉइंट तो पहले ही समझा दिया मैंने. आई होप दैट इतना तक आप लोगों को क्लियर हो गया. फिर नेक्स्ट चीज़ है, देखो कि द बॉइलिंग पॉइंट्स एंड आइसोमरिक हैलो एल्केन्स. आई होप सब समझाया. हाँ, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमरिक हैलो एल्केन्स डिक्रीज विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग. ठीक है, आइसोमरिक हैलो एल्केन्स का जितना ब्रांचिंग ज़्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा. सेम रहे फिर भी, क्योंकि जितना लंबा चेन सीधा रहेगा उतना आपका ना लंडन फोर्सेस ज़्यादा रहेगा. इसमें लंडन फोर्सेस या डिस्पर्शन ये ब्रांचिंग के वजह से रुक जाएगा. ब्रांचिंग है, इसके वजह से डिस्पर्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा एक साइड में, लेकिन इसका डिस्पर्शन अच्छे से हो पाएगा. और ऊपर से ये चेन लंबा है और ये ब्रांच चेन है, तो इसमें क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा. उतना डिस्पर्शन नहीं हो पाएगा ड्यू टू ब्रांचिंग, इसी वजह से. और तीसरा चीज़ क्या लिखा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमरिक डाइहेलोबेंजीन्स. आइसोमरिक डाइहेलोबेंजीन्स मतलब एक होता है ऑर्थो, यहाँ पे CL रह सकते हैं या ब्रोमीन को भी कुछ भी सोच सकते हो. एक होता है मेटा पोजीशन में, एक होता है पैरा पोजीशन में. तो ये हो गया डाइहेलोबेंजीन्स. तो इसमें सबसे अच्छा, सबसे कम, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसमें होगा इसका, क्योंकि और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में भी रह सकता है, क्योंकि ये ऐसा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है. इस सिमेट्री के वजह से इसको बीच में से तोड़ोगे तो ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, ये एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है. तो इसको बीच में से तोड़ोगे किसी भी साइड से तो ये सिमेट्री दिखाएगा. तो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर की वजह से ये ना क्रिस्टल लैटाइस में अच्छे से घुस जाता है. ठीक है, सॉलिड स्टेट में पढ़े थे क्रिस्टल लैटाइस, तो क्रिस्टल लैटाइस में अच्छे से घुस जाता है. तो इस वजह से क्या होता है कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है. तो ये इतना याद रखने से इनफ है. अब क्या है, डेंसिटी. ब्रोमो, आयोडो एंड पॉलीहाइड्रो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर हेवियर देन वाटर. ठीक ही तो है. फ्लूरो को ब्रोमो, आयोडो एंड पॉलीक्लोरो. ठीक है, फ्लूरो और क्लोरो को छोड़ के, फ्लूरो को छोड़ के वाटर से तो सबका ये इसका ये हाई हो गया आपका मॉलिकुलर मास हाई हो गया, राइट. क्योंकि H2O के तुलना में CH3F का थोड़ा सा घट सकता है, लेकिन दूसरे का नहीं घटेगा. ठीक है, ये सब ब्रोमो, आयोडो और पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ये हेवियर होता है वाटर में.
ये देख के भी पता चलता है मॉलिकुलर मास ज़्यादा है तो हेवियर है। तो अगर हेवियर है तो सेम वॉल्यूम में क्या होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगा, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, तो मास बढ़ जाएगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो डेंसिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और कार्बन एटम बढ़ेगा तो और मॉलिकुलर मास बढ़ जाएगा, राइट और रॉन्ग। और नंबर एंड ऑल्सो हैलोजन एटम्स एंड एटॉमिक मास, ठीक है, हैलोजन एटम का भी नंबर बढ़ेगा, एक ही में डाई हैलोजन या ट्राई हैलोजन बन गया तो भी ड्राई डेंसिटी बढ़ेगा क्योंकि एटॉमिक मास बढ़ जाएगा। ये तो बहुत ही आसान चीज़ है। अच्छा, फिर आ गया सॉल्युबिलिटी। देखो हैलोजेंस वगैरह जो है वो वेरी वीकली सॉल्युबल है, हेलो एल्केन्स वगैरह, ठीक है, हेलो एडिन्स का बहुत ही वीक है, हेलो एल्केन्स बहुत ही वीक है, वीकली सॉल्यूबल है, ठीक है, या स्लाइटली सॉल्यूबल है, सॉल्युबिलिटी की तुलना में वीक है, वो बता रहा था, स्लाइटली सॉल्यूबल है, क्योंकि रीज़न ये है क्योंकि हेलो एल्केन जो है उसके खुद के बीच में हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब उसको डिसॉल्व करने के लिए उस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा और पानी में घुलना पड़ेगा उसको, लेकिन उसको तोड़ने के लिए बाहर से एनर्जी चाहिए होता है, तो वो एनर्जी ऑटोमेटिकली कहाँ से मिल सकता है, वो एनर्जी मिल सकता है, दिस एनर्जी कुड बी सप्लाइड बाय न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन हेलो एल्केन और वाटर। जब हेलो एल्केन को वाटर में डाल दिए हो, हेलो एल्केन का जो पोलैरिटी है, वो वाटर का जो पोलैरिटी है वो इंटरेक्ट करके क्या हो सकता है कि उसका जो नया हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, वो नया हाइड्रोजन बॉन्ड जो हेलो एल्केन के खुद के बीच का जो अट्रैक्शन है उसको तोड़ सकता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे ना सोचो वाटर, सोचो, हाँ वाटर का खुद का पोलैरिटी है, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, डेल्टा नहीं लिख रहा हूँ, डेल्टा होता है तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और वाटर होगा तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो उसके खुद के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। अब जो आएगा, ठीक है, जिसको डिसॉल्व करोगे तो वो सोचो CH3Cl है, तो इसका भी एक पोलैरिटी है, राइट और रॉन्ग। तो इसके अंदर भी बॉन्डिंग होगा, पोलैरिटी की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ये सर नो। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है इस हाइड्रोजन बॉन्ड से, क्योंकि अगर डिसॉल्व करना चाहोगे तो ये बॉन्ड के अंदर ये सबको घुसना पड़ेगा और इसको तोड़ना पड़ेगा। अब एक बात हो सकता है कि जब ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करे तो उससे जो एनर्जी रिलीज़ हो रहा है, बॉन्ड क्रिएट करने से एनर्जी रिलीज़ होता है, तो उससे जो एनर्जी रिलीज़ हो रहा है वो इस वाले बॉन्ड को तोड़ सकता है, ठीक है, लेकिन इनफ वो एनर्जी रिलीज़ नहीं कर पाता, इसमें और इसमें जो नया बॉन्डिंग फॉर्म होता है वो इनफ एनर्जी रिलीज़ नहीं कर पाता है कि ये इसका सब बॉन्ड टूट जाए, राइट। तो इस वजह से वो सॉल्यूबल भी नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, सेम चीज़ होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, वाटर के जगह में अगर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इसको डाल दो तो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो नया जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल और इसमें जो बॉन्डिंग होगा उस बॉन्ड का एनर्जी फॉर्मेशन एनर्जी या एनर्जी रिलीज बाय फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और इनफ है इसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाता हूँ। इन हेलो एल्केन्स आर स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर। In order to dissolve haloalkanes in water, energy is required to overcome the attraction between the haloalkane molecules, ठीक है। haloalkane molecules के बीच में जो एनर्जी है, haloalkane molecules के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए, इंट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। लेस एनर्जी रिलीज्ड व्हेन न्यू अट्रैक्शंस आर सेट अप बिटवीन हैलोएल्केन एंड द वाटर मॉलिक्यूल। हैलोएल्केन और वाटर मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन सेट हो, वो एनर्जी उतना नहीं होता है कि उसको पुराने वाले हैलोएल्केन्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ पाए। लेकिन हाँ, इफ हैलोएल्केन्स टेंड टू डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बिकॉज द न्यू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस बिटवीन द हैलोएल्केन एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैव मच द सेम स्ट्रेंथ एज द वंस। मतलब वो जितना एनर्जी रिलीज करेगा वो पुराने हैलोएल्केन के बीच का जो इंटरेक्शन है उसको तोड़ने के लिए इनफ होता है। आई होप फिजिकल प्रॉपर्टी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस किताब का स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको मेरा रफ वर्क में अच्छा दिलचस्पी है, और यहाँ पे भी देख सकते हो, और इसको खुद के बुक में भी बना सकते हो ताकि सब पॉइंट्स याद रहे और इसको लर्न करने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना हो।